You did. Since two classes, I'm not getting your notes. अच्छा one No, you can share it afterwards, right? Don't click the photo right now. But just I want to okay. inform you that you haven't shared the notes since two classes. And what I think that we have finished this chapter. See? But I think you haven't written in the last class. Was that so? That the time was over? Yeah टीचर थोड़ा ऐसे टाइम खत्म हो गया था तो ऐसे But I have explained you the topic, right? you have explained yes. You have From explained from you have ec- to write. from echinodermata, I have to you have to write, or from mollusca. I can't hear you. Yeah टीचर one second mollusca I have written के बाद का Mollusca you have done. Echinodermata अमोला you के haven't done. Okay. last thing I've written is class B Echinoidea and Echinus sea urchin. That is the last thing Okay. that I've written. Okay. Okay. Again, you have written the main points, right? Right, right, Only one point I think, which is very important, and you might have not written that near the anus, like they can ask you in NEET, what is madreporite? Right? So madreporite, it is a type of pore which is a part of vascular system in echinodermata and it is present near the anus. Right? This is one of the important point which you must know. Then the larval stages we have already discussed, right? Then nothing right, else. And you must know that the function of the water vascular system is also to help in locomotion. It is help in respiration and feeding. This is very important. Actually, most of the students they think that it is only helping in feeding. No, it is helping in respiration also, and it is helping in locomotion also. Right? right, right. Now, okay. So we have basically done this part. Now you tell me which chapter you want me to start today, or you want the revision of the same chapter or any other chapter. Like you have the exams, so what you want to do? Ma'am, I guess uh, just a If you quick want a, revision. if of this chapter, Yeah, teacher, like you had made those special wala notes that one time, and you had shown me also. So वैसे this one. no no मतलब ऐसे you had made a separate PDF you had shown for one student. तो उसमें एकदम ही ऐसे important points दिया हुआ था. So ऐसा ओके some ओके, PDF like that. वो तो लेकिन नीट वो तो नील आई कैन डेफिनेटली ओपन फॉर यू, बट द थिंग इज बट द थिंग इज वो तो क्लास 12 का भी उसमें टॉपिक होगा, आपको समझ में आएगा. मुझे ऐसे जितना समझना है मैं समझ लूंगा ऐसे. ओके ओके, नो दैट्स ग्रेट. एक्चुअली मैं तो वो चाहती हूँ कि हर बच्चे के साथ फर्स्ट डे से हम उसको स्टार्ट कराएं, क्योंकि Okay. वो नीट के रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. तो यूजुअली जो भी मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मैं बोलती हूँ कि आप अपनी अलमीरा में लगा लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए. जस्ट लेट मी ओपन इट. हाउ मेनी आवर्स इन अ डे आर यू स्टडिंग नील नाउडेज? सर ऐसे 3-4 घंटे अभी बाहर जाके आया था तभी ऐसे 1 घंटा उस तो पढ़ रहा था दिन.
This is your self-study time, right? या रात को. Yeah. Like, see, these are some of the questions. Like, we have board students also. So there are few questions which are being repeated in either it's a state board or anything. So this is a class 12th question. We won't do this. This is also class 12th question. Okay, okay. This is also class 12th. Okay. Plasmodium needs both a mosquito and a human for its continuity. Explain. Right? This is a general question. Though it is इसका आधा part 12th में दिया हुआ है, but I think you can understand this part. What is a plasmodium? It is a protozoa. You know that it requires both a mosquito and a human to complete its life cycle. ये जो प्रोटोजोआ होता है ना, इसको मच्छर भी चाहिए होता है और ह्यूमन भी चाहिए होता है. जो मच्छर होता है वो तो वेक्टर का काम करता है, जो जाता है एक इन्फेक्टेड, एक हेल्दी से एक इन्फेक्टेड किसी भी इंसान को इन्फेक्ट कर देता है. अब होता क्या है, क्यों इसको दो वेक्टर चाहिए होते हैं? मस्क्यूटो के अंदर ये जो प्रोटोजोआ है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके स्पोरोजाइट्स बनाता है. ये नीट के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. पहला जो प्रोटोजोआ की स्टेज होती है वो जैसे ही किसी मच्छर के अंदर जाता है, वो सबसे पहले जो बनाता है वो है स्पोरोजाइट्स. प्लीज रिमेंबर, वो क्या है? स्पोरोजाइट्स. ये पहली स्टेज होती है. उसके बाद स्पोरोजाइट्स ह्यूमन होस्ट में जाते हैं. ये नीट का रेगुलर क्वेश्चन है. स्पोरोजाइट्स दे आर इंजेक्टेड इनटू अ ह्यूमन होस्ट. मच्छर के अंदर तो प्रोटोजोआ गया था, राइट? हाँ इफ आई हैव हाँ टू, अगर इसके दो पैरासाइट्स हैं, दो जगह वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो मच्छर के अंदर तो प्रोटोजोआ ही गया था, लेकिन हमारे अंदर स्पोरोजाइट्स आते हैं. एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए. अब वो स्पोरोजाइट्स आते कैसे हैं? मच्छर के, जब वो मच्छर हमारी बॉडी में बैठता है, राइट, ब्लड से. अब सबसे पहला ऑर्गन ये जो स्पोरोजाइट्स इन्फेक्ट करते हैं वो कौन सा होता है? लिवर सेल्स होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पोरोजाइट्स कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं? लिवर सेल्स को करते हैं. उसके बाद वो ब्लड में जाते हैं. उसके बाद रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं और यहां पर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Inside the mosquito, it was doing sexual reproduction, and inside the human, he is doing asexual reproduction. Right? समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी लाइफ साइकिल? आई नो यू हाँ हैवंट डन, बट इट इज अ जनरल पॉइंट. एंड इस ये जो क्वेश्चंस हम लोग ऐसे बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे कम से कम 10 क्वेश्चंस नीट में आ जाते हैं रेगुलर. राइट? सो दैट्स व्हाई वी नो कि बच्चों को समझाने के लिए वी आई हैव जस्ट रिटन दैट आंसर. लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन. अब जब रेड ब्लड सेल को उसने इन्फेक्ट कर लिया, अब वो प्रोटोजोआ कहाँ जाएगा? अब मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे. अगर आप कभी भी देखिए किसी भी बंदे को अगर बुखार, मलेरिया लगता भी है, तो डॉक्टर उसका मलेरिया का टेस्ट कभी भी फर्स्ट डे नहीं कराता है, वो हमेशा 10 दिन के बाद कराता है. राइट? अगर किसी को कॉन्टिन्यूअस फीवर आ रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तब भी डॉक्टर पूछता है क्या अभी 10 दिन हो गए? वो 10 दिन के बाद ही फीवर का टेस्ट कराता है अगर उसको मलेरिया का डाउट होता है. वो कभी भी आपसे चौथे पांचवें दिन मलेरिया का टेस्ट नहीं कहेगा. क्यों? क्योंकि इतना सब होने के लिए 10 दिन लग जाता है. तो दिस इज द लाइफ साइकिल. सबसे पहले उसने मच्छर के पास गया, मच्छर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, स्पोरोजाइट्स बनाए. ये स्पोरोसाइट्स ह्यूमन के लिवर में गए, लिवर से ब्लड स्ट्रीम में गए, ब्लड स्ट्रीम से आरबीसी में गए, आरबीसी में जा करके इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, अपनी और कॉपीज बनाई, मतलब और प्रोटोजोआ बनाए, और मलेरिया फैल गया. इसीलिए दोनों चाहिए होते हैं. अब ये लॉन्ग आंसर भी आता है बेटा, है ना? और इसका नीट के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये मैंने आपको बताया. उसके बाद ये भी क्लास 12th का है, क्लास 12th का है. अभी हमने रिप्रोडक्शन नहीं करा है, राइट? रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं करा है, राइट नील? या टीचर सॉरी आई वाज ऑन म्यूट. हाँ, वी हैवंट डन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? नहीं आई डोंट थिंक. ओके, ओके. अब ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कई बार आता है. हाउ डू ऑटोमोबाइल्स फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर्स रिड्यूस द एयर पोल्यूशन?
ये आपके स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू टेल मी, हम हमेशा कहते हैं ना गाड़ी में कन्वर्टर्स लगा दो, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये हम लोग छोटे से पढ़ते हैं कि गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर होगा तो हार्मफुल गैसेस कम निकलेंगी। कैसे, ऐसा कैसे हो जाता है? हम्म। एनी आइडिया? नो, नो रिसर्च। ओके, सो आई विल टेल यू, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या करता है, ये जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सबको लेस डेंजरस में, मतलब आपकी आपके उसमें जहर निकल रहा था, आपने, जहर तो अभी भी निकलेगा, बस वो जहर कम है, वीक वाला पॉइजन टाइप्स। तो ये जो पॉल्यूटेंट गैसेस जो हैं, जो इतने हार्मफुल मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं, उनको वो लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो इस रिएक्शन को बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर इन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर का एक वो बताया हुआ है, ये तो एक आपके स्टेट बोर्ड के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक मेटल बॉक्स होता है जिसमें दो पाइप होते हैं, उसमें से एक पाइप जो है इंजन से अटैच होता है, जो सारी गैसेस को, गरम गरम गैसेस को निकालता रहता है सिलेंडर से, और जो दूसरा है वो आउटपुट रीजन से बाहर आता है। जो भी केमिकल रिएक्शन जाती है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि फैक्ट्रीज में भी ये कन्वर्टर्स होने चाहिए, जिसमें कि जितनी भी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, जो चिमनीज हैं उसमें ये कन्वर्टर होना चाहिए, जिसमें जो भी हार्मफुल गैसेस हैं वो प्रोसेस होकर के निकले, राइट? तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, उसको, ये क्वेश्चन नीट में कई बार आता है कि क्या गैसेस एकदम हार्मलेस हो जाती हैं, तो गलत है, हार्मलेस नहीं होती हैं, कम पॉइजनस हो जाती हैं, राइट? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 50% था तो 50% से 20% रह जाता है, बस ये रहता है। देन उसके बाद कौन से मेटल्स यूज होते हैं इसको बनाने के लिए, ये भी नीट के क्वेश्चंस है। प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ये यूज होते हैं इन कन्वर्टर्स को बनाने के लिए, राइट? ये आपका एक क्वेश्चन है। उसके बाद यस। बस, हाँ, ये एक क्वेश्चन है, इसमें जो फ्यूल यूज होता है इट इज गैसोलीन, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद ये सब, ये भी 12th का है, ये भी नहीं समझ में आएगा आपको। हाँ, लिस्ट द चेंजेस दैट अकर व्हेन ओव्यूल मैच्योर्स इनटू अ सीड, ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, राइट? मतलब ये चैप्टर करा हुआ है हमने, राइट? वी हैव डन प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये उसी से क्वेश्चन है कि जब एक ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो नील यू कैन रिवाइज एंड नाउ यू कैन टेल मी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें। बेटा देखो, अगर ये आपके स्टेट बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो आपको कम से कम इसके 6 पॉइंट्स देने हैं। नीट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूसिलस में क्या होता है, माइक्रोपाइल में क्या होता है, राइट, हाइलम का क्या होता है। तो आपको इसके एक एक ऑर्गेनेली का पता होना चाहिए कि कौन सा प्रेजेंट रहता है, कौन सा जर्मिनेट हो जाता है, कौन सा एग्जॉस्ट होके बेसिकली गिर जाता है। तो नाउ कैन यू टेल मी, ये तो चैप्टर हमने करा हुआ है, इंटेग्यूमेंट्स का क्या होता है? डू यू रिमेम्बर, हमने Would you टेस्ट repeat? और टेगमेंट करा था? डू यू रिमेम्बर? Uh, वी हैव डन बेसिकली, जब ओव्यूल सीड बनाता है तो क्या करता है, ये बेसिकली बहुत सारे ओव्यूल में चेंजेस होते हैं। एक तो okay. इसका जो पानी का कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे, क्योंकि हमारा सीड तो ड्राई होता है ना, सीड थोड़ी ना गीला गीला होता है, राइट? हम्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें बहुत स्लो हो जाती है। आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रोपाइल वाला पोर है वो इसमें रहता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे ओव्यूल में माइक्रोपाइल था, व्हाट इज माइक्रोपाइल?
Micropyle is basically ऐसे the hole through which the ये वेरी गुड, माइक्रोपाइल वो पोर है, राइट? तो ये वैसा ही रहता है, माइक्रोपाइल जो है वो, आई एम सॉरी, माइक्रोपाइल कंट्रोल एक्स, दिस इज माइक्रोपाइल। ना, माइक्रोपाइल तो वैसे ही रहता है, जो न्यूसिलस है वो क्या करता है, जर्मिनेट कर देता है। न्यूसिलस क्या करता है, जर्मिनेट कर लेता है। उसके बाद फ्यूनिकल जो है वो प्रेजेंट रहता है, हाइलम प्रेजेंट रहता है, चालिजा प्रेजेंट रहता है। ये आपको बताने के लिए कि पहली बात है क्या क्या थे और क्या क्या खत्म हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? got it. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डार्विन की थ्योरी आ गई, अभी हमने डार्विन नहीं किया है। हाँ, विच इज द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन? ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है, लेकिन ये नीट का क्वेश्चन है। ये इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं ये नीट के ही हैं। मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैंने ये है कि ये बच्चों को पता ही होना चाहिए। विच इज द लॉन्गेस्ट न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन? नील? Longest neuron of the brain is the Purkinje cell. वेरी गुड। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप ये लिख लीजिए, अगर पता है तो कोई बात नहीं। ये बेसिकली आप इसको नोट्स बना सकते हैं, नीट नोट्स के नाम से, या पीवाईक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से। उसके अलावा ये कई बार पूछ लेते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज किस में देखने को मिलती है और प्रोथैलस किस में देखने को मिलता है। कैन यू टेल मी, प्रोटोनीमा किससे रिलेटेड है? एल्गी से, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, किससे? प्रोटोनीमा? नो आइडिया? नाम सुना है आपने, प्रोटोनीमा सुना है? नील, हाँ प्रोटोनीमा हैव यू हाँ हर्ड? yes. Yeah, ओके, yeah. तो प्रोटोनिमा कहाँ सुना है आपने? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में, कहाँ सुना है? Protonema I've heard in this नो प्रॉब्लम। सी, Pteridophyte. दैट्स, हाँ, ब्रायोफाइट में भी Life सिर्फ cycle. सिर्फ मॉस में, हाँ मॉस वही में, मॉस. राइट? तो आपको ये पता, अब हाँ आपको जैसे ये नहीं आइडिया था, आई थिंक यू गॉट कंफ्यूज, तो आपको पता होना चाहिए प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है और प्रोटोनिमा मॉस में देखने को मिलता है, राइट? प्लीज राइट दिस पॉइंट। right right. देन, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? सबसे छोटी Kiwi. फ्लाइटलेस, हाँ, Kiwi. वेरी गुड। देन, what is the common name, or I can say what is the class of spiny ant eater? Yeah. अब देखिए, हर एक का तो बोटानिकल नाम कोई नहीं याद कर सकता, मैं भी नहीं याद कर सकती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो नीट के रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं, जिनके नाम रेगुलर आते हैं, वो हम स्टूडेंट से बोल देते हैं कि आपको ये तो याद करना ही है। तो आपको स्पाइनी एंट ईटर का बेसिकली टेकाई ग्लॉसस, टेकाई ग्लॉसस, राइट? उसके बाद हाँ डक बिल्ड प्लैटिपस का नाम ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, ये नाम आ चुके हैं, और आ नहीं चुके हैं, बहुत बार आए हैं। ऐसा कौन सा डिजीज है जो कॉटन फाइबर्स से होता है? कैन यू टेल मी? कॉटन फाइबर्स कहने का मतलब है जो कॉटन की इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ हमारे यहाँ बायो में बीमारियां जो हैं वो हेल्थ डिजीजेस हैं, सॉरी, उनको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब जो इस ऑक्यूपेशन में है उसको ये बीमारी होनी ही होनी है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो धूल में काम करते हैं जो लोग, उनको अस्थमा बहुत होता है, राइट? जो जैसे पेंट right वगैरह right. करते हैं, जो पेंटिंग, जो पेंटर होता है, उसके पहले वो पहले आपकी दीवार को साफ करता है, तो उसको एस्थमा होने के चांसेस 90% रहते हैं। तो इट इज हिज ऑक्यूपेशनल डिसीज, उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उसको वो बीमारी हो रही है। तो बिसिनोसिस, ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉटन के फाइबर्स में, जो इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उनको होती है, बिसिनोसिस। देन, आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया के पैरासाइट में जो ऊकाइनाइट स्टेज होती है वो कहाँ मिलती है हमें? वो हमें मॉस्किटो के स्टोमक में मिलती है।
राइट? मॉस्किटो के स्टमक में। ओके। नील, ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है मुझे। हाँ, already I am leaving class 12 topics. I'm dealing with the general topics only. Now, whichever point आपको लगता है कि आपको नहीं आता, please write that point. और एक और चीज, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पामिटिक और स्टीयरिक एसिड आता है, इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। कई बार ये इसके फॉर्मूले की मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, तो इसमें पामिटिक, वैसे तो आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा, राइट? पामिटिक और स्टीयरिक एसिड, हैव यू डन? हाँ, किया तो था। लेकिन फॉर्मूला याद है? नहीं। Okay, please write it. C15H31COOH. Please write this formula. ओके। And don't forget to share the notes of last two classes also. And ओके। please message me the day when you are available in the afternoon. Right? राइट राइट। I would request you that please set Monday for your morning classes or Wednesday. Right? But ओके still, if you ओके can manage any, if you want any other day, then you can inform me. ओके ओके ओके, आई ट्राई।
Done, Neil? Yeah, teacher, done. So why you didn't told me? I thought I did. I've been on. Oh, no, 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 no. I was waiting for you. Okay. Now, pseudotrachea वो दे सकते हैं. It is a mouth part of housefly. Housefly का mouth part है. They can ask you pseudotrachea is related to. Are you getting my point? तो ये आपको Got पता it. होना Yes. चाहिए कि ये हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट है. उसके बाद सिनकाइटियल टाइप ऑफ एपिडर्मिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये अभी अभी हमने चैप्टर करा है. कैन यू टेल मी सिनकाइटियल एपिडर्मिस किस किस फाइलम में किस एनिमल का फीचर है? नील, Yeah, teacher. सिनकाइटियल एपिडर्मिस. आर यू स्टडिंग एनीथिंग एल्स आल्सो? No, no, no. You? ओके, सो सिनकाइटियल एपिडर्मिस इज अ फीचर ऑफ. Syncytial epidermis is a feature of Ascaris. Very good. Excellent. So it is a feature of Ascaris, right? Right. What is the excretory product of cockroach? Uric acid. Just 1 second, ma'am. The doorbell just rang. Okay. Yeah, ma'am. Bye. Okay. Now, how many membranes are there in the mammal's brain? Can you tell me? And if you know that how many are there, can you name them? I don't know their names, but I know the number of membranes. How Uh, many? they have 3 meninges. Okay, excellent. Mammals. Pyometer, durameter, and arachnoid. Do you remember pyometer, durameter, Yeah, yeah, yeah. arachnoid? Yeah. Yeah. So basically, we have three meninges. Then, what is the pH of our brain? Do you think it is acidic or Yeah. alkaline or neutral? It will be alkaline, right? Okay, why? Uh, the brain won't be able to survive in an acidic pH. No, 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 no. I'm asking Yes. basically who is producing that alkaline fluid? It is choroid plexus, right? I think this you haven't done, right? No, teacher. The alkalinity, the fluid that alkali fluid is being produced by choroid plexus. Then aves, reptiles, and amphibians. These all three have two meninges. Please remember, only mammals have three meninges. Aves, reptiles, and amphibians have two meninges. Then, what is exactly gray matter and white matter? हमें पता है ब्रेन में ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है. हमें ये भी पता है कि ब्रेन का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है. तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट ग्रे मैटर होता है और न्यूरॉन का कौन सा पार्ट व्हाइट मैटर होता है? कैन यू टेल मी? Basically, cell body is gray matter and the axon is white matter. ओके, वर यू नोइंग दिस? Not sure. I thought you taught. ओके, वी हैव डन दिस. ओके. And there was a question once, which of the following is a unicellular animal? Are you getting my point? Unicellular animal. And Hmm. can you tell me an example of any unicellular animal? नहीं, नहीं, so No. So very good. So none. The answer would be none. None of the animal kingdom we have unicellular animal, right? Then
if I can, if suppose there is a person who has closed his mouth and nose, how can he breathe? Do you think he can breathe if he has closed the mouth and the nose? No. No, but actually it's biology, and it can breathe out the air through a eustachian tube. They will give you an option no. They will give you an option of eustachian tube. So I want to tell you that if we close both of the things, but still we have a tube through which we can breathe out the air. See, it's not important that whether for 2 seconds we are able to inhale or not. But more important is whether we are able to exhale all carbon dioxide or not. Otherwise, it would be suffocating, right? Just do like Right. this. So you will feel actually we can breathe out. So I want you to please write 1, 2, 3, 4. Means whichever you think you don't know, you can write them. Okay. Can you just highlight all of these so that I know which ones are I have saying? highlighted. Can you see I have highlighted? Yeah, yeah, yeah. Neil, just for a feedback, which part of my class do you don't like? Means do you feel boring or something like that? As in And समझा please, नहीं. means like when I teach, we have done at least 6 to 7 chapters now. So which part of the chapter while I was teaching you felt bored or you didn't like or you didn't understood? You thought that I was fast at that point.
प्लीज बी ऑनेस्ट. Yes, the writing part थोड़ा सा ये था. I wanted to ask if you could ऐसा explain one topic and then directly after that I could write it. So सर दिमाग में फंस जाता है. ओके ओके, यू वांट कि अगर मैंने जैसे इतना मैंने अभी किया आपको मार्क कर दिया कि ये करना है, मैं स्क्रॉल नीचे ना करूँ, राइट? हाँ, पहले I'll just आपको. write it. ओके. ओके, नाउ आई विल जस्ट रिमेम्बर एंड आई विल डू. आई ऑल्सो थिंक दैट दिस वर्क्स मच बेटर. कई बार Yeah, होता है कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते हैं एंड देन द स्टूडेंट आल्सो मिस इट. yeah, sir. Yeah, sir. Done. ओके. Gene silencing is done by single-stranded RNA. What is the meaning of this line? I would like to tell you, like in biotechnology, what we do, like if I don't want a particular gene to express, तो लाइक हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपना मुंह बंद कर देते हैं. सो जीन साइलेंसिंग इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. वी यूज. अब ये पूछ रहे हैं कि जीन साइलेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीएनए का यूज करते हैं कि आरएनए का यूज करते हैं. अगर डीएनए और आरएनए का यूज करते हैं तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज करते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज करते हैं. तो इसका आंसर है, ये भी हम क्लास 12th की बायोटेक्नोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी में आजकल गोल्डन राइस बनाया जा रहा है. बायोटेक्नोलॉजी में गोल्डन राइस बनाया जा रहा है. बेसिकली उसमें किस फूल का जीन ले रहे हैं उसको बनाने के लिए, डैफोडिल का यूज कर रहे हैं. और आपको इसका बोटानिकल नाम भी पता होना चाहिए, सूडो नार्सिसस, राइट? बोन, कार्टिलेज, ब्लड, Okay. लिम्फ, ये सब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं. एक बार उन्होंने क्या किया था, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो उन्होंने उसमें बोन भी लिख दिया, कार्टिलेज भी लिख दिया, ब्लड भी लिख दिया, लिम्फ भी लिख दिया और कोई और ऑप्शन भी लिख दिया, राइट? सो basically they want to ask you, they want to tell you that जनरल कनेक्टिव टिश्यू है कि स्पेशलाइज. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि
कनेक्टिव टिश्यू है ये चारों, ये तो हम सबको पता रहता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड है कि नहीं है ये नहीं पता होता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दो शुगर्स की कैरेक्टरिस्टिक, एक शुगर में आपको कार्बोनिल ग्रुप भी हमेशा दिखता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हमेशा दिखता है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं? तो आई वुड लाइक टू टेल यू, हॉर्मोन्स हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं। किसी भी हार्मोन में आपको आप कहिए आयरन मिल रहा है कि प्रोटीन मिल रहा है, नन ऑफ द हार्मोन इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग? यस तो ये यस एक यस। बार नीट में क्वेश्चन था, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर। हॉर्मोन्स आर न्यूट्रिएंट केमिकल्स, पहला उन्होंने एजर्शन ये दिया था और फिर उसका कोई रीजन दिया था। तो आई वांट टू टेल यू वो एजर्शन रॉन्ग था, क्योंकि हॉर्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। नाउ आई वांट यू, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्राग्राम, ये हमने पढ़ा है कि जब इंस्पिरेशन होता है तो डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और थोरैसिक चैम्बर की कैविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? दो तरीके से चीज देखो, हम लोग या तो ऐसे मोटे होते हैं और या ऐसे लंबे होते हैं। तो जब हम ऐसे लंबे होते हैं तो हम उसको कहते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जो डायफ्राग्राम होता है वो हमेशा एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, और जो एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स होते हैं वो हमेशा डॉर्सो डॉर्सो लैटरल एक्सिस में बड़ा करते हैं। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगेन आई एम गिविंग यू द टाइम एंड आई एम हाईलाइटिंग। ये आपको पता है लंग्स में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, राइट? मस्कुलर यस फैलिंग्स फैरिंग्स हमें एस्कल हेलमिंथिस में देखने को मिलता है, ये भी अभी हमने करा है, राइट? मस्कुलर फैरिंग्स सिर्फ और सिर्फ हमें किस फाइलम में देखने को मिलता है? एस्कल हेलमिंथिस।
Yeah, teacher, done. ओके, नाउ विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ लिविंग थिंग, ये एक क्वेश्चन था। उसमें रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन लिविंग थिंग्स में सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर होता है हमारा कॉन्शियसनेस। हम में और एनिमल्स में बस कॉन्शियसनेस का ही डिफरेंस रहता है, राइट? दे आर, मतलब आई वोंट से दे आर लेस कॉन्शियस, दे आर ऑल्सो कॉन्शियस, बट वी आर सेड टू बी very much educated. Why? Because of our consciousness, right? Then हमारी pelvic girdle में दो बोन्स होती हैं। जो कॉक्सल बोन होती है वो, पहली तो कॉक्सल बोन्स कितनी होती हैं? टू बोन्स होती हैं। कॉक्सल बोन में कौन सी तीन बोन्स होती हैं? डू यू नो? ilium, ischium, do you remember? No, teacher. ओके, हम लोग करेंगे यहाँ पर इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। उसके बाद जो जॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, राइट? जो दोनों हाफ्स होते हैं वो किससे जुड़ते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स, उसमें फाइब्रस। तभी आप देखिए यूजुअली जो हिप जॉइंट होता है उसमें फाइबर्स बहुत देखने को मिलते हैं, राइट? प्लीज राइट दिस थिंग इफ यू वांट टू राइट। अगर आपको बस कॉक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉक्सल बोन्स दो होती हैं और कॉक्सल बोन खुद तीन बोन्स की बनी होती हैं। Okay, ma'am. Sorry. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो दोनों हाफ्स होते हैं पेल्विक गर्डल के, ये डॉर्सली मिलते हैं कि वेंट्रली मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, इतनी छोटी छोटी चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं कि डॉर्सल साइड है कि वेंट्रल साइड है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ होते हैं, ये वेंट्रल साइड, हमको लगता है कि वो आगे से दिखता है, सॉरी पीछे से दिखता है, राइट? But I want to tell you that both the halves of the pelvic girdle, they meet ventrally to form the pubic symphysis. Very, very important. Please write it. Yeah, teacher. Okay, Neil. So I would now like to end the class. Only one thing I want to write, inform you, like you must know the difference between the male gametophyte of pteridophyte and gymnosperms. राइट? तो ऐसे Okay. क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डिफरेंस का, जिम्नोस्पर्म्स में एंथ्रीडियम एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट में एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टेरिडोफाइटा में मेल गैमीट्स हमेशा फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिम्नोस्पर्म में दे मे नॉट बी फ्लैजिलेटेड, राइट? ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एनीथिंग, एनी Right. क्वेश्चंस? ओके, No, no. so Neil, please message to Sushmita ma'am today, whichever day you want to miss the classes for Akash, and inform her, right, for the afternoon, Okay. right? Sure. Okay, Sure. thank you. Thank you. Thank you.